انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 46 ورس۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 46 آیت یعنی 46 ورس۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں چتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ سب کہیں وہ مضبوط بنا ہوا تھا، سب کہیں وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو پھر فور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہو گیا۔ کہیں وہ گھر بالکل برباد ہو گیا۔ پہلا برباد اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مضبوط تھا، اور دوسرا برباد اس لیے ہو گیا کہ وہ مضبوط ہے۔ یہ 2 گھروں کی بات۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ مثال دی، آج جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے یا آگے کرنے والے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم ایسا کیا کرنا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں آپ میں فرض کیا ہے، تو ہم میں فرض کیا ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ جو کام ابھی آپ نے کیا ہے، فٹ واشنگ، یہ جو ایک دوسرے کے پیر دھوئے ہیں، یہ فرض ہے ہم پر۔ کرسمس ایسٹر آپ منائیں نہ منائیں، حکم نہیں ہے منانے کا، یہ ہم سیلیبریشن کرتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے خون اور بدن میں شرکت کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے پیر دھونے ہیں، کیونکہ میں تمہیں نمونہ لے کر جا رہا ہوں۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہاں پر عمل کرنے والے کی بات بتائی جا رہی ہے، کہتے ہیں عمل جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے، یعنی جو کچھ میں کلام میں بتایا جاتا ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے لکھوا دیا ہے، جب تم اس پر عمل نہیں کرتے تو کہتا ہے مجھے اے خداوند کی مت کہو، پھر مجھے خداوند خداوند کیوں کہتے ہو؟ اور آگے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے مثال دی کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے، ہم اس کے پاس آئیں، یہ اس کے پاس ہی تو آئیں جو اس کا گھر ہے۔ جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر، یہ اس کی باتیں ہیں جو ابھی آپ سن رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر آپ گا رہے تھے کلام دیا کرنا، یہ کلام کی باتیں جو ہیں یہ اس کی باتیں ہیں، یہ اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ جو ہے یہ فائدے کے لیے ہمارے۔ ہاللیلویا۔ کہتا ہے جو اور میری باتیں سن کر، پہلی بات میرے پاس آتا ہے، آپ نے یہ پہلا لیول کمپلیٹ کر لیا۔ جیسے کبھی آپ گیم کھیل رہے ہو تو گیم کے اوپر بھی لیول ہوتے ہیں، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول۔ جب تک آپ فرسٹ لیول نہیں پاس کرتے تب تک آپ اگلے لیول کے لیے وہ گیم نہیں کھیل سکتے۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتے رہتے ہیں یو آر لوزر، کہ آپ لوز ہو گئے، آپ لوزر ہیں، آپ فیل ہیں، آپ نے پہلا لیول نہیں سٹیپ پاس کیا، آپ دوسرے پر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح پہلا سٹیپ کیا ہے؟ کہتا ہے جو کوئی میرے پاس آتا، آپ یہاں پر آ گئے ہیں، آپ نے یہ پہلا سٹیپ پار کر لیا۔ ہاللیلویا۔ جو کوئی میرے پاس آتا، اور اگلی بات اور میری باتیں سن کر، اور دوسرا سٹیپ بھی آپ پار کر رہے ہیں، دوسرے سٹیپ کے اندر ہے، آپ دوسرے مرحلے کے اندر ہے، دوسرے لیول کے اندر ہے، اور وہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلام کا سننا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلی بات اس
और फिर अगली बात में कहता है सुनकर उन पर अमल करता है, यानी जो कुछ सुनाया गया है उसको उसके मुताबिक करना भी है। हालेलुया। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदी और चट्टान पर बुनियाद डाली। यानी कलाम खुदा के पास आना, फिर उसकी बातों को सुनना और फिर सुनकर उसको अमल करना, ये मजबूती। हालेलुया। ये मजबूती है। कहता है उसने बुनियाद डाली और जब कहता है ऐसे घर के ऊपर तूफान आया, सैलाब आए। ये तूफान और सैलाब क्या है? ये आपकी जिंदगी में मुसीबत परेशानी है, ये आपकी जिंदगी में दुख है, ये आपकी जिंदगी में बीमारी हो सकती है, ये आपकी जिंदगी में क्राइसिस हो सकते हैं, ये आपकी जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत परेशानी हो सकती है, जिसको आप ये नाम दे सकते हैं कि ये मेरी जिंदगी में बड़ा तूफान है, मेरी जिंदगी में बड़ा सैलाब है। और ये तूफान और सैलाब कहते हैं उस घर पर आकर टकराया। मत्ती की इंजील में लिखा है टकरे लगी, जोर जोर से टकरे लगी, बार बार सैलाब की छलें आई और उस घर को हिलाने की कोशिश की, घर को गिराने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर लिखा है टकराया तो उसे हिला ना सका। क्यों ना हिला सका? क्योंकि वो मजबूत बना हुआ। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी में एक घर की मानद है। सोचे क्या ये सब कुछ घर के मामला के सब हमारी जिंदगी में उस वक्त मजबूत हो सकते हैं जब हम पहला मरहला ये कि हम खुदा के पास आ जाए। कुछ तो इसमें ही फेल है, जो नहीं आए वो इसमें ही फेल है कि वो पहले मरहले को भी पार कर नहीं सके, तो दूसरा मरहला तो उन तक लागू ही नहीं होता। पहला काम तो ये आप आए, दूसरा काम ये आप कलाम सुने। अब तीसरा काम कब शुरू होता है? ये उस वक्त शुरू होता है जब आप अपने घर में चले जाएंगे और उस कलाम को याद रखेंगे। हालेलुया। याकूब के खत में लिखा है कि कलाम को जो भूलता नहीं और याद रख के उस पर अमल करता है वो बरकत पाए। और कलाम बिल्कुल आईने की मानद है। कहता है अगर कोई कलाम सुनकर उस पर अमल नहीं करता तो वो बिल्कुल इसी तरह करता है जैसे वो शीशा देखता है और थोड़ी देर उधर होता है साइड पर, तो फिर भूल जाता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। हालेलुया। हाँ, एक स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से मैं आपको एक स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। आज खुदा का कलाम कैसे आप तक पहुंचता है। आज खुदा का खादम आपको कोई ना कोई मुसीबत दूर करता है, कोई ना कोई बात जरूर बताता है। जब आप उसके सामने अपना प्रॉब्लम रखते हैं, जब आप उसके सामने अपनी मुश्किल परेशानी रखते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ जरूर डायरेक्शन देता है कि आप ऐसे करें। हालेलुया। ये आपके साथ होने वाला कलाम होता है और जब बाद में आप उस पर अमल करते हैं तो आप बरकत पाते हैं। हालेलुया। एक शख्स था पुराने अहदनामा के अंदर, उसका नाम है नुमान। क्या नाम है? और ये कोई था। इसके बारे में लिखा है दूसरा सलातीन 5वां बाब और उसकी पहली आयत में कि शाह आराम के लश्कर का सरदार, ये लश्कर का सरदार है। हालेलुया। ये लश्कर का सरदार है, इसका नाम है नुमान। ये एक मौजूद और मुकर्रम शख्स है, बड़ा जबरदस्त है, इज्जत भी है, सब कुछ है और जबरदस्त सूरमा भी है। लेकिन इसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, इसकी जिंदगी में एक कमी है, इसकी जिंदगी में एक मुसीबत परेशानी है और वो ये है कि वो घोड़ी है। उसका बदन जो है वो कोर से बना पड़ा है। और एक वक्त आता है उसके घर पर एक इस्राएल की एक लड़की उसके घर पर असीर करके ले जाया गया उसको। और जब उसने देखा कि जिस असीर करके जब उसको ले गए तो उसने अपनी बेगम के हवाले कर दिया कि तू इसके साथ रहकर, जैसे आजकल लोग घर में जाकर काम करते हैं, वो भी उसके घर में काम करती थी। तो जब उसको पता चला कि मेरी जो मालकन है, इसका जो हस्बैंड है वो तो कोई है, तो उसने अपने मालकन से ये बात उसने कहा, उसने अपनी बीवी से कहा काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोर से शिफा दे देता। हालेलुया। ये एक छोटी सी लड़की है जिसने एक एड्रेस दिया है, जिसने एक खादम के बारे में बताया है, जिसने एक नबी के बारे में जिक्र किया है, जिसने एड्रेस बताया है कि मैं जिस मुल्क जिस गली मोहल्ला से मैं आई हूँ, जिस शहर से मुझे असीर करके ले आया गया, वहाँ पर एक ऐसा शख्स है, वहाँ पर एक ऐसा नबी है, वहाँ पर एक ऐसा खादम है कि अगर ये मेरा जो मेरी बीवी का जो हस्बैंड है, ये अगर वहाँ जाएगा तो ये कोर से ठीक हो जाएगा, इसको ये शिफा दे देगा, ये सही हो जाएगा।
और यही बात सुनकर उसने अपने खामन से की, खामन तक पहुंची, खामन ने बादशाह से की, बादशाह ने खत लिखा, खत लिखकर उस मुल्क में भिजवाया गया और वहां पर अलीशा था। अलीशा के पास नुमान गया और नुमान जाकर क्या कहता है, पढ़ते हैं सो नुमान अपने घोड़ों रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। कहां पर? घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ है, अंदर नहीं गया, घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कला भेजा कि जा और यरदन में 7 बार गोता मार। अलीशा ने अपने किसी बंदे से कहा कि जो नुमान आया है मुझसे दुआ करवाने के लिए, उसको इतना ही जाकर कह दे कि बस अलीशा ने ये कहा है कि जाकर दरिया यरदन में क्या कर, 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। हालेलुया। अब इसके लिए कलाम क्या है? इसके लिए खुदा ने अपने बंदा के जरिया से, अलीशा के जरिया से क्या कलाम किया? बीमारी इसके अंदर है, कोड़ उसको लगा हुआ है, लेकिन इसने क्या, उसके साथ क्या कलाम हुआ कि तू जाकर क्या कर, यरदन के अंदर क्या कर। हालेलुया। कौन कौन मेरी बात समझ रहा है? सब कहेंगे हालेलुया। 7 बार क्या कर, गोता मार 7 दफा, तो तू कोड़ से क्या हो जाएगा? अब इसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसको बताए, कौन बताएगा? जाकर गोता मारना चाहिए, यही करना चाहिए ना। लेकिन इसने ये नहीं किया, इसने कहा, पर नुमान नाराज होकर चला गया, नाराज हो गया, कहते चंगा पादरी है, चंगा पास्टर है, मैं तो सोचा सी कि मेरे कोल आएगा, मेरे ते हाथ रखेगा, हाथ फेर के मेरे लिए की करेगा, दुआ करेगा। इन्हें अपने नौकर का दिता, जाके की कर, दरिया यरदन की कर गोते मार। कहता साडे उते दरिया घट ने, इते दरिया का नाम लिखा है, कहता उधर भी तो दरिया है, ये वही काम होना होता तो मैं उते गोता मारता, मैं ठीक हो जाता। पर बात ये नहीं है, बात दरिया की नहीं है, बात उधर के दरिया की या इस दरिया की नहीं है, बल्कि बात इस बात की है कि अब कहा किसने है। हालेलुया। अब कहा किसने है ये मायने रखता है। अब तूने मानना किस बात को है? खुदा के खादम की बात को जब तू मानेगा तो खुदा के कलाम पर अमल करेगा, तब तेरी जिंदगी में शिफा जारी होगी। हालेलुया। उसने कहा कि तू दरिया यरदन में जाकर गोता मार। यहाँ पर लिखा है, पर नुमान नाराज होकर चला गया। आज भी लोग नहीं भाई साहब तुसी कहा के द्वार नहीं साढ़े सिर ते हाथ रख के द्वार कहते हैं ना लोग। लेकिन याद रखें, अगर आपको खादम फोन पे भी कह देना तो ईमान रखा करें इस बात, जो कुछ वो डायरेक्शन दे, जो आपको कहे करने के लिए कलाम के मुताबिक वो करें, कलाम के मुताबिक। ये बात याद रखिएगा। कोई बात नहीं कभी बकरा लाया तुसी पता चले बात ही नहीं किया जी बकरा लाके तो बोलो आदम कलाम के मुताबिक जो कहे, ठीक है। उसने कहा, कहने लगा, नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा, उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को छिपा देगा। कहना मैं तो समझदा सा कि मेरे को आंदा, मेरे लिए दुआ करदा, मेरे लिए हाथ रखदा, जितने मेरे कोड़ है वो कोड़ दे हाथ फेरदा, फिर मैं ठीक करूं। हालेलुया। लेकिन कभी कभी खुदा जो है हमारी सोच के मुताबिक काम नहीं करता, उसको अपने तरीके से काम करना। हम ये समझते हम जैसे सोच रहे हैं ना वैसे छुपा रहे, इसीलिए लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो नहीं करते जो खादम कह है, उस बात पर अमल नहीं करना जो खादम कह है। हालेलुया। लेकिन अगर खुदा के खादम किसी को आप समझते हैं तो फिर अगर वो जो कह रहा होता है, अगर आप उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, याद रखें इसमें शिफा और फायदा आपका ही होगा जिस तरह नुमान का हो। हालेलुया। आगे बढ़ते क्या हो, क्या दमिश्क के दरिया बाना फराफर इस्राएल की सब नदियों से भरकर नहीं, क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया, उसको गुस्सा आ गया, कहता उसके भी तो दरिया है, तुम उसके ना लड़ना। आगे, तब उसके मुलाजिमों पास आकर उससे यूं कहने लगे, उसके मुलाजिमों ने उसको समझाया कि मालिक बात सुनो, उसने कोई बड़ी बात तो तुझसे कही नहीं, अगर तेन को वड्डी गल कहता होगी तो तू करनी सी, ते कर ला, ते गोता मारनी ते गल है। वो किसी समझदार
नौकर ने समझा देता है शुक्र उन्हें मान ली हैं। ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। हालेलुया। कहता जेड़ी गल उन्हें कही तू मान क्यों नहीं लेता? जे तेन को होर कर कहता, और कोई काम करना नहीं कहता, कोई बड़ी कुर्बानी लेना नहीं कहता, कोई भी काम ऐसा करने के लिए तुझे कहता तो वो तू करना ही था तुमने। लेकिन ये तो छोटा सा काम है, जब वो तुझे कह रहा है कि जाकर नहा ले तो तू ठीक हो जाएगा, तो उसकी बात मान ले, यानी उस पर क्या कर ले? अमल कर ले। हालेलुया। इसने उसकी बात मान ली, और जैसे ही इसने बात मानी तब उसने उधर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक, मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक गर्दन में 7 गोते मारे, और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया, वो पाक साफ हुआ। कितने गोते मारे इसने? 7 गोते मारे हैं। पहला मारा होगा, ठीक नहीं हुआ होगा, फिर दूसरा मारा होगा, फिर भी ठीक नहीं हुआ होगा, तीसरा मारा होगा, फिर भी कह रहा होगा अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ, फिर चौथा मारा होगा, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर पांचवा मारा, फिर भी ठीक नहीं हुआ, और फिर छठा मारा, फिर भी ठीक नहीं हुआ, और उसने हिम्मत करके 7वां भी मार दिया। और जब वो बाहर निकला तो यहाँ पर लिखा है, बाइबल मेरी बता रही है कि उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया। तो इसका मतलब है कि ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर बाइबल ऐसा कह रही है तो कोई कितना कुछ भी कहे, जो कुछ इसके अंदर लिखा है वो मेरे और आपके लिए मोतबर है, एतबार के लायक है। हालेलुया। इस पर हमें एतबार करना ही करना है। लेकिन उसने किया क्या है? अमल किया। एक दफा अमल किया नहीं, जितनी दफा उसे कहा है उतनी दफा ही उसने वो काम किया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुनते जरूर हैं, आते भी जरूर हैं, सुनते भी जरूर हैं, खादिम को बताते भी जरूर हैं, लेकिन